Hello students, good morning. Myself Neha Sukla and I am an English teacher from KP Public School. Okay, and our today's topic is direct and indirect speech. Okay, let's start. So first of all, we have to know what is difference between direct speech and indirect speech. Okay, so first we will see what is direct speech. We may quote speaker's actual words, that is called direct speech. Means we can say speaker's actual words, exact words without changing in it. That is called direct speech. Means हम speaker के actual words को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, that is called direct speech. उसे हम direct speech करते हैं, direct speech कहते हैं, और हम उसमें कोई चेंज नहीं करते तो वो direct speech होती है. We will see an example. Ram said, I am very busy now. As Ram said, राम ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ. तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड. जो वर्ड्स राम ने कहे हैं हम भी उसी के वर्ड्स को डायरेक्टली कह रहे हैं कि राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. ओके, एंड यू कैन सी दैट राम सेड आफ्टर राम सेड के बाद यहाँ पे कॉमा एंड वी विल यूज कॉमा एंड नोटेड कॉमा, देन आई एम वेरी बिजी नाउ. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ओके, नेक्स्ट indirect speech. Now, okay, let's see. We may report what he said without quoting his exact words. We may report, we may say speaker's words without quoting his exact words. Means हम speaker के exact words को ना कह के भी हम उसकी बातों को express कर सकते हैं. That is called indirect speech. Okay, as Ram said that he was very busy then. Okay, and let me tell you one thing. We have to see both examples. जब हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे कि राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. राम ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ. तो हमने उसके वर्ड्स में कोई चेंज नहीं किया, हमने डायरेक्टली जो उसके वर्ड्स थे उसी को हमने एक्सप्रेस किया है. बट हम यहाँ पे जो देखेंगे राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन. राम सेड दैट ही वॉज. अब यहाँ पे हम जो वर्ड्स कह रहे हैं इसमें हम चेंज कर रहे हैं. वर्ड्स जो है वो राम के ही हैं बट हम उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि राम ने कहा कि वह बहुत बिजी था. ओके, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. एंड नाउ क्लियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, let I will tell you what is next. Our topic is reported speech and reporting verb. Okay, what is difference between reported speech and reporting verb? I want to show you example. Ram said I am very busy now. Okay, so what is reporting verb? Okay, so words that are outside of inverted comma. आपको यहाँ पे inverted comma दिख रहा है ना. वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं हम उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. एंड वर्ड्स विच आर इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. एंड वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग verb. Words which are outside of inverted commas that is called reporting verb, and words that are inside of inverted commas that is called reported speech. Okay, so we will see one more example and you have to change. As I will say, he said I am very busy now. He said I am very busy now. Now you have to write it in your notebook and I will tell you answer after few moments. Okay, just write it in a copy. So he said I am very busy now. Then क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका indirect speech. तो हम राम की जगह पे क्या कर देंगे, he said that he was very busy then. Okay, let's see. That is called reported speech. Okay, so we will see one more example and you have to change.
as I will say, he said, I am very busy now. He said, I am very busy now. Now you have to write it in your notebook and I will tell you answer after few moments. Okay? Just write it in a copy. So he said, I am very busy now. Then क्या हो जाएगा यहाँ किसका indirect speech? तो हम राम की जगह पे क्या कर देंगे? He said that he was very busy then. Okay? Okay. Let's see. Now we will see rules for changing. Now we will learn rules for changing tense. Okay? As of now we have learned how to change person and now we will learn how to change tense. And let me tell you one thing. We will change tense of reported speech only when reporting verb will be in past tense. Okay? हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तभी चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा. इफ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. ओनली हम पर्सन में चेंज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो ऐसे रहेगा. ओके? ओके. रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस. First is simple present tense change into simple past. Okay? If reported speech tense is in simple present tense, then it will be changed into simple past. Means as we can say, he said, I am a king. He said, I am a king. तो क्या होगा इसका हम इसको कैसे चेंज करेंगे? He said that he was a king. तो अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. सेकेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस into past perfect continuous tense and simple past means past indefinite will be changed into past perfect tense. Simple present will change into simple past. Present continuous will be changed into past continuous. Present perfect will be changed into past perfect. Present perfect continuous will be changed into past perfect continuous and past indefinite will be changed into past perfect tense. Okay? And there will be no change of past perfect and past perfect continuous. Past perfect continuous and past perfect tense में हम चेंज नहीं करेंगे. मीन्स उसको हम किसी दूसरे टेंस में नहीं चेंज करेंगे. ओके? So now let me tell you one thing. I want to give you some example that present continuous change tense into past continuous. Sita said to Ram. Sita said to Ram, I am going to market. Sita said to Ram, I am going to market. Okay? So Sita told Ram that she was going to market. Okay? Present continuous change into past continuous. Okay. Present perfect tense change into past perfect tense. He will say, you had gone. He will say, you had gone. Means अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप अगर चेंज करेंगे he will say that you had gone. ना इसमें तो एक बार ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है. हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट में इसलिए भी नहीं चेंज होगा. प्लस इसलिए भी नहीं चेंज होगा क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है. विल सेल क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है. इसलिए भी हम इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है एज
Radha said to me, I have been working hard since morning. Radha said to me, I have been working hard since morning. इसको आप क्या बनाएंगे? Radha told me that she had been working hard since morning. Okay? One more example I want to give you, that yes, past indefinite change into past perfect. Okay? I say to him, he played ball. I say to him, he played the ball. इसको आप कैसे चेंज करेंगे? Means if you are thinking that, it will be changed as I told him that he had played ball. No, this will be wrong. ये रॉन्ग होगा. क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा. ओके, वी विल चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे. अदरवाइज मीन्स इफ यू आर थिंकिंग दैट, इट विल बी चेंज एज I told him that he had played ball. No, this will be wrong. ये रॉन्ग होगा. क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा. ओके, वी विल चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे. अदरवाइज हम उसको सेम रहने देंगे. जब भी वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे. एंड लेट मी टेल यू अदर चेंजेस. वी विल चेंज विल इनटू वुड. हम अगर डायरेक्ट स्पीच में विल है तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम वुड में चेंज करेंगे. वी विल चेंज शैल इनटू शुड, एंड कैन इनटू कुड, may into might, must into had to. Okay, we will change will into would, shall into should, may into might, and must in had to. Okay, and he said the horse died. And I am giving you one more example. He said the horse died. He said that the horse had died. Okay, now this is your steps of rules for changing tense. Okay, if you have any problem you can ask me in your class. Okay, that's all for today. Okay students, now we will learn how to change direct speech into indirect speech. Okay, then first of all we will learn rules for changing person, means how we will change person of reported speech. Okay, हम ओनली रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंजिंग करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन में आप कोई चेंज नहीं करेंगे. ओके, तो अब इसमें देखेंगे आप, मैंने आई हैव रिटन समथिंग 1 2 3 अपॉन सन, एंड दिस इज, यू कैन से दिस इज अ ट्रिक फॉर चेंजिंग पर्सन. वन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. ओके, दिस इज द ट्रिक कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ओके, एंड इफ देयर इज थर्ड पर्सन, अगर वो थर्ड पर्सन में रहेगा तो नो चेंज, तब हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही कर देंगे. Okay, okay, let's see rules for changing person. First person, we will change first person I we. First person में आपके कौन कौन से आते हैं? I we. We will change first person I we according to subject to reporting verb. हम फर्स्ट पर्सन I we को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. ओके, एंड वी कैन सी एग्जाम्पल. She said I have done my work. या कहे डायरेक्ट स्पीच, She said I have done my work.
ओके, तो अगर जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, सी सेड दैट सी हैड डन हर वर्क, बिकॉज आई क्या है आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हम रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका सीता, तो आई सीता के लिए क्या हो जाएगा, सी हैड डन हर वर्क। ओके, तो फर्स्ट पर्सन वी विल चेंज फर्स्ट पर्सन आई एंड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके, एंड नाउ सेकेंड पर्सन वी विल चेंज सेकेंड पर्सन यू। सेकेंड पर्सन में आपका क्या आता है, यू। वी विल चेंज सेकेंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड इफ रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट इज इन सेकेंड पर्सन मीन्स यू, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एंड लेट मी टेल एग्जांपल, ही सेड टू देम यू आर हैप्पी। ही सेड टू देम यू आर हैप्पी। ऑब्जेक्ट यू नो, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। ओके, आपको बताया जा रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में रहेगा तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। He said to them, "You are happy." तो he told them that they were happy. He told them that they were happy. Okay? तो इसीलिए हमने यहाँ पे you के प्लेस पे हमने क्या किया, you को हमने them के अकॉर्डिंग चेंज किया। them का सब्जेक्ट क्या होगा, they. Okay? Next, as I have told you that third person no change. Third person means he, she, they. तो अगर ही सी दे रहेगा तो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, ही सी इट तो उसमें चेंज नहीं होगा। एंड ही टोल्ड हर दैट ही वाज वेरी हैप्पी। ओके, ही सेड टू हर ही इज वेरी हैप्पी। ही टोल्ड हर दैट ही वाज वेरी हैप्पी। ओके, तो इफ थर्ड पर्सन ही सी इट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तब हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको हम वैसे ही राइट करेंगे। ओके, सो नाउ this is the rules for changing person. Rules for changing person, you have to just learn one thing, 1 2 3 upon son. First person according to subject, second person according to object, and third person according to change. Okay, and one thing more that we have to learn, that we have changed only reported speech person. हमें जो पर्सन चेंज करेंगे, हम आपको बताया जा रहा है ये आप रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन ही चेंज करेंगे। ओके, नॉट रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेंगे आप उन्हीं को चेंज करेंगे। ओके, दैट्स